السلام علیکم، میں ہوں تسکین عالم۔ اس ویڈیو میں کچھ ایسی گرامر کی غلطیوں پر روشنی ڈالی جائے گی جو انگریزی سیکھنے والوں سے اکثر انگریزی لکھتے یا بولتے وقت ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں ان غلطیوں میں سے 8 قسم کی غلطیوں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ یہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے۔ تو ابتدا میں ایک دفعہ اور جانتے ہیں کہ گرامر کی غلطی کیا ہو سکتی ہے۔ گرامر کی غلطی تحریر میں کسی لفظ یا علامت کا غلط استعمال ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ قائم شدہ گرامر کے اصولوں سے انحراف ہے۔ گرامر کے اصول پڑھنے والوں کے لیے تحریر کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی رائٹر عام گرامر کی غلطیوں میں سے کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ اپنے کام کو غلط سمجھے جانے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ گرامر کی سب سے عام غلطیوں کو سمجھنا، ہم انہیں کیوں کرتے ہیں اور ان کو کیسے درست کیا جائے، آپ کو اپنی تحریری صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد دے سکتے ہیں۔ گرامر کی ان 8 غلطیوں پر پچھلی 2 ویڈیوز میں روشنی ڈالی جا چکی ہے، جن کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ڈس ایگریمنٹ آف سبجیکٹ اینڈ ورب، جملے کے سبجیکٹ اور ورب کی نا اتفاقی۔ رانگ یوز آف ٹینسز، یعنی ٹینسز کا غلط استعمال۔ مس پلیسنگ آف موڈیفائرز، یعنی موڈیفائرز کا غلط جگہ پر استعمال۔ پروناؤن ڈس ایگریمنٹ، یعنی غیر مطابقت والے پروناؤن کا استعمال۔ امپراپر یوز آف پنکچویشن مارکس، علامات کا غلط استعمال۔ کنفیوزنگ سملر ساؤنڈنگ ورڈز، ایک جیسے تلفظ والے کنفیوز کرنے والے الفاظ۔ کنفیوزنگ سملر لکنگ ورڈز، ایک جیسے دکھائی دینے والے کنفیوز کرنے والے الفاظ۔ یوزنگ انکمپلیٹ کمپیریزنس، نامکمل موازنوں کا استعمال۔ اس ویڈیو میں ان مندرجہ ذیل 4 غلطیوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ کنفیوزنگ دا انفینیٹیو جیرنڈ اینڈ بیس فارم آف ورب، یعنی جیرنڈ، انفینیٹیو اور ورب کی بیس فارم کے استعمال میں کنفیوز ہونا۔ نمبر 2، کامن مسٹیکس ود پریپوزیشنز، یعنی پریپوزیشنز کے استعمال کی عام غلطیاں۔ نمبر 3، کنفیوژن ان یوزنگ سائن آف اپاسٹرافی، اپاسٹرافی کے استعمال میں کنفیوژن۔ ہو ورسز دیٹ، یعنی ہو بمقابلہ دیٹ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جیرنڈ، انفینیٹیو اور ورب کی بیس فارم کے استعمال میں کیا کنفیوژن ہوتا ہے۔ انگلش جملوں میں ورب ضرورت کے مطابق مختلف فارمز میں استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی یہ بیس فارم میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی انفینیٹیو فارم میں، کبھی جیرنڈ فارم میں اور کبھی دیگر فارمز میں۔ انگلش سیکھنے والوں کو ان سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جملے میں ورب کی کون سی فارم استعمال کرنی ہے۔ ورب جب اپنی بنیادی شکل میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بغیر کسی تبدیلی کے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بیس فارم کہلاتا ہے۔ اسے پریزنٹ فارم بھی کہتے ہیں۔ اسے پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بیس فارم سے پہلے ٹو لگایا جائے تو یہ انفینیٹیو فارم کہلاتا ہے۔ بیس فارم کے آگے انگ لگانے سے اسے جیرنڈ فارم میں استعمال کیا جاتا ہے جب کسی ورب کو ناؤن کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انگلش کا ایک ورڈ ہے واک، اس کی مختلف ورب فارمز کچھ اس طرح ہوں گی۔ جب یہ صرف واک ہوتا ہے تو یہ اس کی بیس فارم اور پریزنٹ فارم کہی جاتی ہے۔ اگر اس سے پہلے ٹو لگا دیا جائے یعنی ٹو واک تو یہ انفینیٹیو فارم کہلائے گا۔ اگر اس کے آگے ای ڈی کا اضافہ کیا جائے تو یہ واکڈ ہو جاتا ہے اور اسے پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارمز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ واک کے آگے انگ لگانے سے یہ ہو جاتا ہے واکنگ۔ یہ جیرنڈ فارم اور پریزنٹ پارٹیسپل فارم کہلاتی ہیں۔ واک کا ورب کی ان مختلف فارمز میں استعمال دیکھتے ہیں۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں میں ورب کو بیس فارم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ I walk in the morning، اس کے معنی ہیں میں صبح میں پیدل چلتا ہوں، یعنی چہل قدمی کرتا ہوں۔ یہ جملہ اگر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں استعمال کرنا ہے تو ورب اپنی بیس فارم میں استعمال ہوگا، اس لیے واک کا استعمال درست ہے۔ اس کا ٹو واک یا واکڈ کی صورت میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں استعمال غلط ہوگا۔ یہ دیکھیے کچھ سینٹینسز جو کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں۔ I to walk in the morning یا I walked in the morning۔
जब हम ऐसे वर्ब इस्तेमाल करते हैं जैसे जाना है, खाना है, देखना है, बनना है, तो वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगाया जाता है, जैसे टू लर्न, टू रीड, टू वॉक वगैरह वगैरह। ये मिसालें देखें। आई वॉन्ट टू वॉक इन द मॉर्निंग, इसके मायने हैं मैं सुबह में चहलकदमी करना चाहता हूँ। इस किस्म के जुमलों में वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगाया जाता है, इसलिए टू वॉक का इस्तेमाल दुरुस्त है और वॉक या टू वॉकिंग का इस्तेमाल गलत है। आई वॉन्ट वॉक इन द मॉर्निंग या आई वॉन्ट टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग ग्रामर के लिहाज से गलत जुमले हैं। इंग्लिश में जरूरत पड़ने पर वर्ब्स के बेस फॉर्म में इंग का इजाफा करके नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे नाउन्स को जीरंड कहा जाता है। ये मिसालें देखें। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसके मायने हैं सुबह में चहलकदमी सेहत के लिए फायदेमंद है। वर्ड वॉकिंग यानी चहलकदमी एक नाउन है। यहाँ वॉक के आगे इंग लगाकर इसे जीरंड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो दुरुस्त है। इनका जुमलों में इस तरह का इस्तेमाल जैसे टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ या वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ ग्रामर के लिहाज से गलत जुमले हैं। वर्ब की फॉर्म्स पर हमारी एक तफसीली वीडियो हमारी ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया जा रहा है। नंबर 2, कॉमन मिस्टेक्स विद प्रीपोजिशंस यानी प्रीपोजिशंस के इस्तेमाल की आम गलतियां। इंग्लिश सीखने वालों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन प्रीपोजिशंस के इस्तेमाल में होता है, खास तौर पर एट और ऑन के इस्तेमाल पर। दीगर प्रीपोजिशंस पर भी कंफ्यूजन होता है। प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल बहुत जगहों पर होता है, बल्कि तकरीबन हर सेंटेंस में होता है। इन्हें 8 किस्मों टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, कनेक्शन, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंट, ओरिजिन, रीजन में तकसीम किया गया है। सबसे पहले एट और ऑन को देखते हैं। आमतौर पर एक मखसूस वक्त के साथ एट इस्तेमाल होता है और किसी मखसूस दिन और तारीख के साथ ऑन इस्तेमाल होता है। ये जुमले देखें। द पार्टी स्टार्ट्स एट 10:30 PM, इसके मायने हैं पार्टी रात के 10:30 बजे शुरू होगी। इस जुमले में मखसूस वक्त का इजहार किया गया है, इसलिए एट का इस्तेमाल दुरुस्त होगा, ऑन का इस्तेमाल गलत होगा। द पार्टी स्टार्ट्स ऑन 10:30 PM ग्रामर के लिहाज से एक गलत जुमला होगा। आई शैल मीट यू एट नून, इसका मतलब है मैं आपसे दोपहर को मिलूंगा। यहाँ पर मखसूस वक्त है, इसलिए एट इस्तेमाल होगा, ऑन का इस्तेमाल गलत होगा। आई शैल मीट यू ऑन नून ग्रामर के लिहाज से एक गलत जुमला है। ही इज बिजी एट द मोमेंट, इसके मायने हैं वो इस वक्त मसरूफ है। यहाँ पर मखसूस वक्त है, इसलिए एट इस्तेमाल होगा, ऑन का इस्तेमाल गलत होगा। ही इज बिजी ऑन द मोमेंट ग्रामर के लिहाज से एक गलत जुमला है। माई बर्थडे इज ऑन जून 16th, मेरी सालगिरह 16 जून को है। एक मखसूस तारीख 16 जून की वजह से एट का इस्तेमाल गलत होगा, ऑन का इस्तेमाल दुरुस्त है। माई बर्थडे इज एट जून 16th ग्रामर के लिहाज से एक गलत जुमला है। द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन कमिंग मंडे, यानी अगला इजलास पीर को होगा। एक मखसूस दिन पीर की वजह से ऑन का इस्तेमाल दुरुस्त है, यहाँ पर एट का इस्तेमाल गलत होगा। द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड एट कमिंग मंडे ग्रामर के लिहाज से एक गलत जुमला है। द फ्लाइट इज अराइविंग ऑन टाइम, यानी फ्लाइट वक्त पर पहुंच रही है। इस जुमले में किसी खास वक्त का तज़किरा हो रहा है, इसलिए ऑन का इस्तेमाल दुरुस्त है और एट का इस्तेमाल गलत है। द फ्लाइट इज अराइविंग एट टाइम ग्रामर के लिहाज से एक गलत जुमला है। कुछ दीगर प्रीपोजिशंस का गलत और दुरुस्त इस्तेमाल देखते हैं। अहमद वाज जस्ट ऑन टाइम टू कैच द टैक्सी, एक दुरुस्त जुमला है। अहमद वाज जस्ट इन टाइम टू कैच द टैक्सी ग्रामर के लिहाज से एक गलत जुमला है। यहाँ पर इन के बजाय ऑन का इस्तेमाल दुरुस्त है। और फैमिली इज अशेम्ड फॉर हिम, यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल दुरुस्त है। और फैमिली इज अशेम्ड ऑफ हिम ग्रामर के लिहाज से एक गलत जुमला है, यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल गलत है। There were over 500 guests in the wedding party, ये जुमला ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त है। इस जुमले में ओवर का इस्तेमाल दुरुस्त है। There were more than 500 guests in the wedding party ग्रामर के लिहाज से एक गलत जुमला है। यहाँ पर more than का इस्तेमाल गलत है, ओवर का इस्तेमाल दुरुस्त है।
राहील्स सजेशंस आर डिफरेंट देन योर्स ग्रामर के लिहाज से एक दुरुस्त जुमला है, जबकि राहील्स सजेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स ग्रामर के लिहाज से गलत है। यहाँ पर देन का इस्तेमाल दुरुस्त है, फ्रॉम का इस्तेमाल गलत है। He feels superior than everybody else यहाँ पर देन का इस्तेमाल दुरुस्त है, टू का इस्तेमाल ग्रामर के लिहाज से गलत है। You can meet the board members in the office ये ग्रामर के लिहाज से एक दुरुस्त जुमला है। इस जुमले में एट का इस्तेमाल ग्रामर के लिहाज से गलत है। My brother is aiming for leaving America यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल दुरुस्त है, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल गलत होगा। His father died from cancer यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल दुरुस्त है, प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल ग्रामर के लिहाज से गलत होगा। This project will cost around $1 million यहाँ पर प्रीपोजिशन अराउंड का इस्तेमाल दुरुस्त है। इस जुमले में प्रीपोजिशन अबाउट का इस्तेमाल गलत होगा। रुखसाना इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल दुरुस्त है। रुखसाना इज मैरिड विद अ डेंटिस्ट में प्रीपोजिशन विद का गलत इस्तेमाल है। करीम हैज बीन हियर फॉर 3 months यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल दुरुस्त है, जबकि सिंस का इस्तेमाल गलत होगा। सिंस के इस्तेमाल के लिए जुमले का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना जरूरी है। We studied for 4 hours यहाँ पर भी प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त है, जबकि प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का इस्तेमाल गलत होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी प्ले लिस्ट्स को विजिट करें और हमारी दीगर वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें। नंबर 3, एपोस्ट्रोफी के इस्तेमाल में कंफ्यूजन। इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी की अलामत एक से ज्यादा मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन भी पैदा होता है। ये अलामत उल्टे कामा से मुशाबह होती है, जो अल्फाज के नीचे के बजाय ऊपर लगाई जाती है। इसे इन 3 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्शंस यानी कुछ अल्फाज को मुख्तसर लिखने के लिए। नंबर 2, पॉजेसिव नाउन्स बनाने के लिए। और नंबर 3, जुमले में अल्फाबेट्स और डिजिट्स की तादाद बताने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल अल्फाज को मुख्तसर लिखने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ मिसालें देखें। आई हैव को मुख्तसर करके आई एपोस्ट्रोफी वी करके भी लिखा जाता है, जैसा कि आपके सामने मौजूद इस जुमले आई हैव सीन दैट मूवी सेवरल टाइम्स में दिखाया गया है। यहाँ पर एच ए को कम करके एपोस्ट्रोफी लगाई गई है। डू नॉट को मुख्तसर करके डोंट करके भी लिखा जाता है। आई डोंट लाइक स्मोकिंग, इस जुमले में नॉट के ओ को कम करके एपोस्ट्रोफी लगाई गई है। कैन नॉट को मुख्तसर करके कैंट करके भी इस्तेमाल किया जाता है। आई कैंट बिलीव ही हैज वॉन द रेस, इस जुमले में कैन नॉट के एन ओ को हटाकर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है। इट इज को मुख्तसर करके इट्स करके भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये जुमला है इट्स स्नोइंग अगेन। यहाँ पर इस के आई को हटाकर एपोस्ट्रोफी लगाई गई है और इन्हें मिलाकर लिखा गया है। लेटस को लेट्स करके भी लिखा जाता है। लेट्स स्टार्ट सेविंग मोर मनी ईच मंथ, यहाँ पर अस के यू को हटाकर एपोस्ट्रोफी लगाई गई है और दोनों को मिलाकर लिखा गया है। यू आर में आर के ए को हटाकर एपोस्ट्रोफी लगाकर और दोनों को मिलाकर लिखा जाता है। यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन टुडे। अब देखिए एपोस्ट्रोफी का दूसरा इस्तेमाल। पोजीशन यानी मिल्कियत या ताल्लुक जाहिर करने के लिए नाउन या प्रोनाउन के बाद एपोस्ट्रोफी की अलामत और फिर एस लगाया जाता है। ये मिसालें देखें। रजियाज डॉग बिट द नेबर, इस जुमले में रजिया के बाद एपोस्ट्रोफी लगाई गई है और फिर एस लगाया गया है। इस इजाफे से पोजीशन यानी मिल्कियत या ताल्लुक जाहिर होता है और तर्जुमे में उर्दू में का इजाफा हो जाता है। रजियाज डॉग यानी रजिया का कुत्ता। अहमद कार वाज डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट, यहाँ पर भी अहमद के बाद एपोस्ट्रोफी लगाई गई है और उसके बाद एस लगाया गया है, जिससे पोजीशन यानी मिल्कियत या ताल्लुक का इजहार होता है। अहमद कार यानी अहमद की कार। पोजीशन जाहिर करने के लिए एपोस्ट्रोफी और एस के बजाय ऑफ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रजियाज डॉग के बजाय डॉग ऑफ रजिया भी कह सकते हैं और अहमद कार के बजाय कार ऑफ अहमद भी कह सकते हैं।
जुमलों में अल्फाबेट्स और डिजिट्स की तादाद बताने के लिए अगर एक से ज्यादा हो तो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है जैसे ये बताया गया है। There is 1 2 2 3s 1 4 and 2 8s in 238,843। इस जुमले में 2 3 बताने के लिए 3 के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर s लगाया गया है। इसी तरह 2 8 बताने के लिए 8 के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर s लगाया गया है। There is 1 M, 4 I's, 4 S's and 2 P's in Mississippi। इस लफ्ज में 4 I, 4 S और 2 P बताने के लिए तादाद के बाद हर्फ और उसके बाद एपोस्ट्रोफी और S का इजाफा किया गया है। और आखिर में देखते हैं दैट बमुकाबला हु, यानी दैट और हु के इस्तेमाल में क्या कंफ्यूजन होता है। हु इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है जबकि दैट बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। माई ब्रदर इज द वन दैट सॉल्व द मिस्ट्री। ये ग्रामर के लिहाज से एक गलत जुमला है। यहाँ पर दैट का इस्तेमाल गलत है। दुरुस्त जुमला है माई ब्रदर इज द वन हु सॉल्व द मिस्ट्री, यानी मेरा भाई वो है जिसने मुअम्मा हल किया। ब्रदर एक इंसान है, इसलिए इसका हवाला देने के लिए हु का इस्तेमाल दुरुस्त है और दैट का इस्तेमाल गलत है। I went through an article who changed my perspective on climate change। ये ग्रामर के लिहाज से गलत जुमला है। दुरुस्त जुमला है I went through an article that changed my perspective on climate change। इस जुमले के मायने हैं मैं एक मजमून से गुजरा जिसने मौसमियाती तब्दीली पर मेरा नुक्ता नज़र बदल दिया। आर्टिकल एक बेजान चीज है, इसलिए इसका हवाला देने के लिए दैट का इस्तेमाल दुरुस्त है और हु का इस्तेमाल गलत है। We are part of an organization who promotes girls education। ये ग्रामर के लिहाज से गलत जुमला है। दुरुस्त जुमला है We are part of an organization that promotes girls education, यानी हम एक तंजीम का हिस्सा हैं जो लड़कियों की तालीम को फरोग देती है। ऑर्गेनाइजेशन एक बेजान चीज है, इसलिए इसका हवाला देने के लिए दैट का इस्तेमाल दुरुस्त है और हु का इस्तेमाल गलत है। इसी तरह दैट और विच के दरमियान भी कंफ्यूजन होता है। दैट का इस्तेमाल एक ऐसी शिक को मुतारिफ कराने के लिए किया जाता है जो किसी जुमले में ज़रूरी मालूमात का इजाफा करती है। यह इंसानों, जानवरों और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। विच का इस्तेमाल एक ऐसी शिक को मुतारिफ कराने के लिए किया जाता है जो तफसील का इजाफा करता है लेकिन जुमले के लिए अहम नहीं होता है। ये मिसालें देखें। द पेन विच आई एम यूजिंग बिलोंग्स टू उमैर। यहाँ पर विच का इस्तेमाल गलत है। दुरुस्त जुमला है The pen that I am using belongs to उमैर, यानी मैं जो कलम इस्तेमाल कर रहा हूँ वो उमैर का है। इस जुमले में that पेन के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर that का इस्तेमाल दुरुस्त है। The cat that is black is very cute। यहाँ पर that का इस्तेमाल गलत है। ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त जुमला है The cat which is black is very cute, यानी बिल्ली जो कि काली है बहुत प्यारी है। इस जुमले में बिल्ली के बारे में मजीद मालूमात फराहम की जा रही हैं, इसलिए विच का इस्तेमाल दुरुस्त है। द मूवी विच आई सॉ वॉज वेरी हॉरिफाइंग। यहाँ पर विच का इस्तेमाल गलत है। ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त जुमला है द मूवी दैट आई सॉ वॉज वेरी हॉरिफाइंग, यानी मैंने जो फिल्म देखी वो बहुत खौफनाक थी। इस जुमले में दैट मूवी के बारे में जरूरी मालूमात फराहम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दैट का इस्तेमाल दुरुस्त है। The dress that was blue looked very pretty on her। यहाँ पर that का इस्तेमाल गलत है। ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त जुमला है The dress which was blue looked very pretty on her, यानी लिबास जो कि नीले रंग का था उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। ड्रेस के बारे में मजीद मालूमात फराहम की जा रही हैं, इसलिए which का इस्तेमाल दुरुस्त है। यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में कुछ न कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा और आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे जिनका जिक्र इस वीडियो में किया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।